Hi everyone. So we'll be starting in 5 minutes. So Atindra, should we start? Yeah, sure, Karan, we can start. Yeah. So hi everyone. This is Karan Sontake here, Assistant Manager, Secured App, and here's Atindra. Atindra, you can introduce yourself. Hi, everyone. My name is Atindra Kausalgi, Marketing Associate at SecureDAV. So Atindra, can you introduce us? What's our topic and which stand are you taking? So, the topic for today is we are discussing on which is more essential, which is smart contract essential or runtime security. So, I'll be taking the side of smart contract audits. Over to you, Karan. So yes, and I'll be taking the side of runtime security. So I think runtime security is better than smart contract security, although both are essential. So that's my stand, and Athindra thinks that smart contract audits are better than runtime security. So Athindra, can you please explain what do you mean by smart contract audits? So smart contract audits are basically the audit of the smart contract. Basically, you find the vulnerabilities in the smart contract. Basically, there are many vulnerabilities in the smart contract which are determined when you are doing such stuff, such as you can say writing a smart contract, you get multiple error on the codes. So while getting the error on the codes, you find the vulnerabilities. So for that, to minimize those vulnerabilities, we need smart contract audit. So yeah, give me a second. I think there's some issue in my video. Yeah. Just restarting it. Yeah, yeah, it's fine. So I'm taking the side of runtime security. So what do you mean by runtime security? So runtime security means 24/7 vigilance by an security tool that helps you detect the threats that are incoming, that are here to exploit your smart contracts or digital assets that are on chain. So it provides on chain monitoring 24/7. And Atinder, can you please tell us what is the impact of smart contract auditing? So impact of smart contract auditing is that whenever you audit and smart contract, basically you're auditing for preventing the future exploits that might happen on your smart contract. So basically to terminate those or to prevent those, you do smart contract audits basically. Okay, so this is very narrowed down approach, right? You go into the Yeah. depth and see whether even if there is a mistake in comma or full stop, right? Can you please explain more about it? So as smart contract audit goes, for if you write a smart contract, as I said earlier or as I mentioned earlier, that while writing the smart contract, you face multiple errors in the code which you don't see. So for that, people audit the smart contract to recognize whether this line of code is having any problem or having any vulnerability or an which can be exploited easily, basically, the smart contract. So for that, people audit, and as I would rather mention or I would rather say तो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स में कैसे होता है कि अगर सामने वाला को अगर तुम्हारे एक्सप्लॉइट करना ही है तो बिफोर दैट यू नीड टू प्रिवेंट
प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे बेसिकली वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट को एक्सप्लॉइट होने से बचने के लिए. सो फॉर दैट you need to have it audited, as I said. Secondly, you can audit, you as you know audit कितना महंगा जाता है आज के दिन में. सो ऑडिट करने के लिए मल्टीपल टूल्स भी है, जैसे कि सॉलिडिटी शील्ड है. सॉलिडिटी शील्ड पे तुमको विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड तुम्हारे कोड में जितने वल्नरेबिलिटीज है वो सब अपने आप दिख जाएंगे उस पे. Okay. So basically, this is a pre-deployment sort of practice that we are Yeah. adopting, right? Yes. Pre-deployment, as in before deploying your smart contracts on the blockchain, right? Yes. Yes. So what runtime security is doing, this is helping you post deployment of the smart contracts onto the blockchain. So after deploying your smart contracts, if there is any abnormality or any malicious attempts by attackers, uh, the runtime security tool immediately alerts you so that you can take mitigative actions. And even in tools like Secure Watch that is developed by our own Secured app, so that tool even helps you mitigate, as in we have an auto defender tool that's coming in a few days. So apart from the transaction limit that you can set, you can also mitigate these attacks through various other aspects. So what type of attacks do you think, Atindra, that can happen if you don't do security audits, smart contract audits? According to me, there are Oracle exploits or phishing exploits. So basically, smart contract hold, if your smart contract holds a lot of assets, it tends to be exploited. So people tend to exploit the smart contract more क्योंकि उसमें ज्यादा assets है. तो people, the exploiters or the hackers you might say, are tend to hack or exploit those smart contracts. So for that, I say to prevent those steps or to prevent the or to take precautions कि exploit होने से बचाए before runtime, before implementing runtime on the smart contract, we need to make sure the smart contract has been audited multiple times. कि Right. एक नहीं दो नहीं, तुमको तीन चार बार करके उसमें से रिफाइन करते रहना है उस चीज को, जैसे कि वो बचता जाए. अगर अगर एक दो बार करके तुमने छोड़ दिया तो इट टेंड्स टू गेट एक्सप्लॉइटेड क्विकर. So ये तो फिर काफी महंगा पड़ेगा, राइट अतिंद्र? नहीं. मल्टीपल ऑडिट्स यू आर सेइंग, सो मल्टीपल और ऑडिट्स कैन गो इनटू लैक्स, राइट? तुम मल्टीपल बार करोगे क्योंकि रन टाइम सिक्योरिटी तो एक ही बार तुम्हें डिप्लॉय करना है, तुम ऑडिट्स तो मल्टीपल टाइम्स बोल रहे हो. दिस इज वेयर सॉलिडिटी शील्ड कम इन प्लेस. सो सॉलिडिटी शील्ड में तुमको सिर्फ एक मिनिमल अमाउंट है, मिनिमम अमाउंट पेन करके तुमको एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिडिटी शील्ड एक प्री स्कैन तुमको दे ही रहा है. So you can directly upload your smart contract through GitHub, through a file, a .sol file basically, और तुमको फिर पता चल जाएगा. और if you buy a plan from a plan of Solidity Shield, you get an report basically. उसमें तुमको दिखता है कि कौन से लाइन ऑफ कोड में कहाँ एरर आ रहा है और कहाँ करेक्ट होना चाहिए. Right. So this is not, yes, obviously manual code auditing is way costlier, but AI auditing is really cheap compared to a manual audit. So, so let me come in on this. So, in runtime security, because like you are saying, smart contract audits are essential pre-deployment. So, if you haven't deployed your smart contracts on chain, and if you have not made your project live, because after deploying your smart contracts, you are making the project live. So, अगर प्रोजेक्ट ही लाइव नहीं किया है तो उसमें क्या एसेट्स रहने वाले हैं अतिंद्र? कैन यू एक्सप्लेन दैट? एसेट्स एज इन अभी जो तुमने लाइन ऑफ कोड्स लिखे है उस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में बोल सकते हो, तो वो तुम्हारी उसमें मेहनत है बेसिकली. तो अभी कोई भी आके उस चीज को भी अभी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद उसको ऑडिट करने के बाद तुम फिर उसमें ट्रांजेक्शन्स होंगे, फिर उसमें तुम एसेट स्टोर करोगे. तो फिर उसके बाद मतलब बेसिकली वही होता है कि पहले राइट. एसेट स्टोर करना ही पड़ेगा उसमें. At this point, let me come in. So you are saying value will be added later, या and this is a precautionary step that you are doing. So
So let's say that value is added later when your project is making profits and people are coming in, they are putting in digital assets into your smart contracts, into your project. So here's where you need a smart contract, real time smart contract monitoring, someone that monitors your smart contract 24/7 and alerts you if there is any oracle attack as in, they can check whether they can go into the system, go into the smart contracts, or not, and it gives you a signal. If yes, then they can attack, the attackers can attack. And other you can say that there are distributed denial of service attacks. So when they can overwhelm your system, and after that your project can't make any profit, so उसमें भी लॉस होता है. So both this case, पहले इसमें तो डिजिटल एसेट्स चले जाएंगे ओरेकल अटैक्स में, और डिस्ट्रीब्यूटेड डिनायल ऑफ सर्विस अटैक्स में हम सर्विस ही प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे. So in both these cases there are huge financial losses, and this can happen mainly for decentralized exchanges, like you have seen in recent past, WazirX, in recent past Bybit, huge exchanges and huge amount of exploits that have taken place. So once value addition is done, you need to protect your assets, and this is where runtime security, I think, is better. So someone is saying we are rooting for Atindra. Atindra, you are getting support. Yeah. Yes, go on. So Karan, I had a question regarding अभी जैसे तुमने बोला कि बायबिट और वजीर एक्स का लेके, सो ये जो एक्सप्लोइट्स हुए बेसिकली अभी, हाउ कैन यू टेल मी हाउ विल रन टाइम अडेप्ट to those, or how can runtime upgrade itself? Yeah. So one good thing about runtime security is it is customizable. Customizable as in, आपकी नीड के हिसाब से you can set your alerts. आपकी नीड के हिसाब से you can say मुझे इस पे alerts चाहिए, या मुझे ये लगता है ये important नहीं है, मुझे किसी और चीज पे मुझे alert करो. So these alerts you can get on your Slack, on your email, and on your dashboard as well of runtime security. So in some cases में once an attacker comes in, auto defender can come into action, and it can safeguard your digital assets by preventing any exploits. I think that you can like ask a follow-up question if I'm not clear on this. So I am not totally satisfied by your answer, Yeah, basically, Karan. yeah, So if you could show me a demo, or if anything is possible, so I would love it. yeah. You can repeat your question again. I can show you the demo in a better way then. So I asked you the previous examples that you gave of Bybit, WazirX. So Right. after that exploit, you need to upgrade yourself, right? So Yes. how can your runtime be upgraded, basically? Yes. So basically, first of all, in your question, you are saying अटैक उन पे हुआ है तो मुझे अपग्रेड करना है. नो, उनको अपग्रेड करना है उनके सिस्टम्स. तो उनको रन टाइम सिक्योरिटी, हमारी रन टाइम सिक्योरिटी उनके लिए अडॉप्ट करनी है. एंड वी आर ऑलरेडी फ्लेक्सिबल, सो वी आर अडेप्टेबल, but they should be adopting our security as well. So in what way I can show you, in what way it can work. So let me share my screen. Is it visible? Yes. So yes. So here's how the Secure Watch dashboard looks. Okay. So here is the contract monitor. Contract monitor, as in it is monitoring your smart contracts, and wallet monitor. We also have a wallet monitor feature, so that तुम्हारे assets कहाँ गए, you can track that. And let us create a monitor. Okay. You can go on create monitor. You can enter any name. Test, say Karan, that's my name. And these are the blockchains that we are working on right now, and we'll be adding more blockchains to it. So Okay. let's say all of these are EVM blockchains, except Algorand. So let's go to Algorand. Algorand के केस में क्या होता है? So Algorand के केस में app ID, it has asked you for app ID, or you can say asset ID. You can enter your asset ID as well. जैसे टोकन का तुम्हारा क्या आईडी है, so that's your asset ID. So Yeah, this got is it. your asset ID, and you can create.
Okay, the monitor has been created. So monitor मतलब क्या है? This is, we are creating a monitor and now we are setting a condition. So मैंने तो first step तो कर लिया, तो मैंने उसको asset ID दे दी कि यार तुम इस पे monitor करो, monitor on this thing. And now how you can monitor it? So this is a payment transaction, you can say मुझे payment transaction पे monitor चाहिए, and I can then save my monitor. Now this is the auto defend feature that is coming in. So वो पूछेगा तुम्हें email पे चाहिए alert या किस चीज पे चाहिए. So let me put in my email. So this is not a tough thing actually. You may say यार ये सब complicated है. No, nothing complicated about this. मैंने तो simply तुमको दिखा दिया कैसे कर सकते हैं ये सब चीजें. So now the monitor is updated. इसके बाद में once I do any transaction, okay, it will give you an alert here. इधर तुम अलर्ट्स देख पाओगे तुम्हारे, यस और तुम्हारे ईमेल पे तो अलर्ट आएगा ही. सो लेट मी कम बैक टू दिस. सो ईमेल ईमेल पे तो अलर्ट आएगा, स्लैक पे भी आएगा. यू माइट हैव वर्क प्रीवियसली इन अ सॉफ्टवेयर कंपनी, एनी ऑफ द गाइज दैट हैव जॉइंड अस इन दिस सेशन. If they have worked previously in a software company, they, when a server fails, okay, there's an alert that comes in into your email to all the people that are involved, say in the IT, all the product guys, product support guys, all the developers. एक alert आता है saying that systems are down, राइट. सो यही, ये चीज सेम चीज तुम सोच सकते हो. वी आर डूइंग फॉर वेब 3, सेइंग that there is an attack coming in, or there is a malicious attempt that has happened, और किसी एक certain limit के ऊपर transaction हो चुके हैं. So guys, please take a mitigative action on this. So this is where secure watch comes in. It provides you 24/7 security. So Atindra, I think you are या satisfied on this. तो Do you want to करण see योर any स्क्रीन demo on है. EVM? मैं नो, सिर्फ आई एम satisfied, just your screen is still sharing. Can you stop it? yeah, sure. Yeah. So go ahead, Karan, if you have any questions. Yeah. Any follow-up questions, Atindra, on this? No, regarding the, yeah, I found the process very simple for listing the for the listing of monitor or creating a monitor in it. Right. I'll I don't have any further questions. If you have any questions regarding to smart So, contract audit, you can so, ask. so इसमें एक चीज तो तुम्हें पता हो गई होगी, हाँ. Atindra. There is minimal latency in this. We are providing you quick alerts on this, but I don't think. Do you think smart contract audits are a quick sort of thing that you can do? फट से हो जाएगा ऑडिट, ऐसे कुछ है? क्योंकि मैंने तो सुना है कि मैनुअल ऑडिट्स टेक अ लॉट ऑफ टाइम. सो एज आई सेड अर्लियर, मैंने जैसे स्पेसिफाई किया था कि सॉलिडिटी शील्ड एक टूल है, एआई जनरेटेड टूल डेवलप्ड बाय सिक्योर्ड ऐप. उसमें विद इन अ फ्यू सेकेंड्स यू गेट द योर ऑडिट योर ऑडिटेड रिपोर्ट. बेसिकली उसमें तुम्हारे सब मीडियम क्रिटिकल सब कोड्स के वल्नरेबिलिटीज दिख जाते हैं. सो राइट. दिस, so basically before giving or before a manual audit, you can audit yourself and look into it, try to minimize it. So if you are not मतलब अगर तुमको कुछ डेमो देखना है तो I can really show you. It's a या quick प्लीज. process. या प्लीज शो. Yeah. Let me share my screen. या. So is my screen visible? Yeah, it is. So this is Solidity Shield tool. Yeah, Yeah. yeah. Okay. सो बेसिकली इसमें सिर्फ लॉगिन करना पड़ता है, और लॉगिन करने के बाद तुमको एक ओटीपी आएगा, एंड वेर इन यू कैन जस्ट पुट योर ओटीपी एंड डन. सो Yeah. क्लिक ऑन स्कैन नाउ. यहाँ पे 50 MB की फाइल चलेगी खाली. सो देर आर मल्टीपल ऑप्शंस एज यू कैन सी, गिटहब, कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस एंड अपलोड फाइल. Hmm. सो आई हैव अ टेस्ट विथ मी. लेट मी रियली क्विक. सो आई हैव अटैच्ड अ फाइल voting.sol. तो यहाँ Right. पे मैं डालता हूँ test_Atindra. तो यहाँ पे मैं स्कैन नाउ, सबमिटेड टू स्कैन. अभी ये देखो, मेरे कोड में देखो 10 out of 10 स्कोर आ गया. Okay.
So सो already audited it seems. Yeah. जो इसलिए जैसे अभी मेरे कोड में कुछ वल्नरेबिलिटीज नहीं है, तो यहाँ हाँ. पे कुछ वो दिखा नहीं रहा है, सिर्फ अभी बोलेगा कि थोड़े इश्यूज है, वो करेक्ट करने पड़ेंगे मेरे को। Okay. सो एज फार दिस गोज, दिस इज एन रियली क्विक प्रोसेस। और अभी अगर मेरे पास ये रहता कि मेरे पास एक सॉलिडिटी शील्ड का कोई सब्सक्रिप्शन रहता, तो आई कैन गेट अ कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट ऑफ दिस एंड सी why these three issues are arising basically. Okay. Okay. Got it. Yeah, So informational issues are not the vulnerabilities you are saying, but information में ही कुछ कम ज़्यादा है, right? कम ज्यादा, yes. Okay. Okay. Can you go on to scan now? I have a doubt in this. Yeah. Can you click on scan now? And so any file you can upload in this? No, Then it should be a dot sol file basically. So स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते वक्त तुमको एक डॉट सोल फाइल करके ही अपने आप जनरेट होती है बेसिकली। whenever you write in remix id or you write on any basically on Visual Studio etc, तो by default it will come as dot sol file. So dot sol file को यहाँ पे अटैच करो, नहीं तो तुम्हारी गिटअप रिपोजिटरी रहेगी उसमें से वो रहेगा तो वो अटैच करो, नहीं तो so तुम dot ऑब्वियसली dot कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस जनरेट होता ही है उसमें। तो so dot sol कौन सी लैंग्वेज है ये dot sol मतलब? डॉट सोल इज ऑफ ये अपना रस्ट। Rust, but name to Solidity Shield, right? So I think it must be Solidity Shield. या सॉलिडिटी शील्ड है बेसिकली। या सो वही कि डॉट Yeah, सोल उससे सॉलिडिटी लैंग्वेज से ही तुमको मिल जाएगी। रिमिक्स आईडी पे तुम लोग लिखोगे तो right. अपने आप उधर वो जनरेट हो जाती है। So no matter what the blockchain you are working on, if you have a .sol file with you, right, you यस, can scan your smart contracts here. इजीली So, इजीली। so as of now, how many blockchains are there in this? Can you show Solidity Shield में? या जैसे सिक्योर वॉच में तो मैंने दिखा दिया था, इतने सारे ब्लॉकचेन्स थे, लाइक अराउंड 20 ब्लॉकचेन्स आर इजीली देयर. सो कैन यू गो ऑन टू स्कैन नाउ एंड शो अस उसमें जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. हाँ. तो इसमें इसमें कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस में इथेरियम mainnet, पॉलीगॉन, सेफोलिया, आर्बिट्रम, एवलांच, देयर आर मल्टीपल चेन्स की बेसिकली। अभी तो बाइनांस चेन भी ऐड कर लिया हम लोगों ने रिसेंटली, ऑप्टिमिज्म ऐड किया है, ओके. जेड सिंक वाला भी, जेड सिंक एरा उनका भी है, उनका भी हम लोगों ने लिस्ट किया है। सो ओके. विच सो एवर नेटवर्क यू आर वर्किंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम दिस नेटवर्क देन मतलब जो भी तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है लिखे हुए ब्लॉकचेन्स के, ये सब ब्लॉकचेन्स के अलावा भी अगर मेरे पास डॉट सॉल फाइल रही तो मैं स्कैन कर सकता हूँ सॉलिडिटी शील्ड पे? हाँ कर सकते हो। Okay, okay. Got it. You या, can come back. I think my doubt is clear here, यस, Atyendra. या। So can you tell us कि in case मतलब audits नहीं हुए properly, how can you recover your digital assets then? ऑडिट्स, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन? If someone has not done smart contract auditing, और अगर auditing हुआ है और वो proper नहीं हुआ है, अगर समझो किसी ने सिक्योरिटी ऐप से नहीं ऑडिट कराया है, किसी और से ऑडिट करा, उन्होंने शायद अच्छे से ऑडिट नहीं किया होगा, ठीक है, तो उसके अगर डिजिटल एसेट्स एक्सप्लॉइट हो चुके हैं, सो हाउ विल यू रिकवर दोस डिजिटल एसेट्स? अथेंद्र, कैन यू टेल अस सम मेथड्स? सो फॉर दैट अकॉर्डिंग टू मी, बेस देखो अभी एसेट बचाने का तरीका तो ऑडिटिंग ही ठीक से अगर हुई नहीं है तो तुम क्या करोगे ना? यस, लूपहोल भी इतने बड़े हैं, सो बहुत वो अगर तो. तुम्हारा अगर बेसिकली ऑडिट प्रॉपरली हुआ ही नहीं है, या हम्म, मैंने जैसे कि लास्ट टाइम मेंशन किया था कि ऑडिट एक बार हुआ ऐसे नहीं समझना कि तुम्हारा परफेक्ट है वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। हम्म, यू शुड ट्राई टू थ्री, दो तीन बार तो करना ही चाहिए तुमको कि वो, फिर तुमको एक श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ मेरे एसेट्स है, सेफ है मेरे पास, वो राइट. एक्सप्लॉइट नहीं हो सकते बेसिकली। सो राइट, अगर किसी ने सिक्योर्ड ऐप के अलावा किसी से कराया है, सो मेक श्योर दैट दे गेट ऑडिट्स फ्रॉम सिक्योर्ड ऐप एज वेल, सो दैट डबल एश्योरेंस मिल जाएगा, राइट? यस, यू आर. यस, 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 और अगर ऑडिट ही नहीं हुआ है तो एक्सप्लोइट तो होना ही है. होना ही है, होना ही है। So right. So in this, let my runtime security aspect come in. So if there are any abnormalities, and if somehow the exploit has happened, okay. So we have our secure trace tool with us.
that can help you recover your assets. And even in our secure watch that I've showed you, मैंने अभी डेमो बताया secure watch का, Yes. उसमें उसमें वॉलेट मॉनिटर भी था, ठीक है. इट शोज यू तुम्हारे एसेट इस वॉलेट से इस वॉलेट पे गए, सो यू कैन लाइक इजीली ट्रेस इट. एंड इफ यू नीड अ विजुअलाइजेशन ऑफ दैट और उसकी हिस्ट्री अगर तुम्हें चाहिए होगी, यू कैन यूज अ सिक्योर ट्रेस टूल एज वेल, Atindra. So I think recovery aspect you can do much better through our secure watch tool. Even though I feel कि फाउंडेशन भी अपना अगर ठीक नहीं है, ऑडिट से ठीक नहीं हुआ है, तो क्या ही कर सकते हैं, राइट. So so do you think these two tools are complementary then, Atindra? या वी गेट एक तो तुमको स्कैन मिल ही जाता है तुम्हारे लॉग इन करने के बाद. वन स्कैन इज कॉम्प्लीमेंट्री फ्रॉम आवर साइड. Hmm. सो द आई हैड अ क्वेश्चन रिगार्डिंग कैसे अभी तुम बताओ कि रिसोर्स कैसे बच जाओगे, रिसोर्स एंड कॉम्प्लेक्सिटी कंसिडरेशंस रन टाइम का कैसे हो सकता है. Okay, so you say that there are समझो 100 lines of code in this. So मैंने तुमको एक डेमो जो बताया था, एल्गोरिथम टेस्ट नेट का डेमो बताया था. So you can do the same thing with EVM as well, राइट. सो उसमें यू एंटर योर एबीआई कोड, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का एबीआई कोड जो रहता है, ठीक है. सो if there are a lot of if the code is complex one, okay, so उसमें कुछ conditions भी लगे रहते हैं, and these conditions are detected by the secure watch tool. सो जो कंडीशन तुमने अपने स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में सेट किया है, सो उसी कंडीशन को वो कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं, वो सिक्योर वॉच टूल हमारा सेंस कर लेता है. एंड वंस इट डज, तो एग्जीक्यूशन इज हैपनिंग प्रॉपरली और नॉट, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड में सिक्योर वॉच मेक श्योर it is done, and if it is not done, it will alert you right away. So any questions coming in from our audience, we can open it for Yeah. audience for a few minutes, then we can continue. Yes. So Mr. Rahul has asked to Karan, Yes. runtime tool often comes into play after deployment. How can you ensure they catch threats in the time to prevent the actual damage? Okay, so there is a transaction monitor that I had just set in the demo. मैंने transaction monitor set किया था. उसमें you can set the limits like 10 assets अगर तुम्हारे transact हो चुके, और for example $10 के ऊपर अगर transaction हो चुका है तुम्हारा, then you should stop. जैसे जैसे ATM में we put a limit that after 5,000 rupees per day, there should be no transaction happening, right? So after that thing, हम सेम चीज सिक्योर वॉच कर रहा है. इट इज पुटिंग इन अ लिमिट, खुद से नहीं कर रहा है, यू आर ओनली गिविंग, यू आर ओनली कस्टमाइजिंग इट. सो तुमने Yes. ही जैसे बैंक के ऐप में तुमने ही बोला था कि 5,000 की लिमिट लगाओ, सिक्योर वॉच में भी यू आर सेइंग, इसमें भी बोल रहे हैं कि $10 की लिमिट लगाओ, $10 के ऊपर मुझे वॉलेट से ट्रांजैक्शन नहीं करना है. सो वंस यू डू दैट, सिक्योर वॉच तुम्हारे ही परमिशन लेने के बाद में ये ट्रांजैक्शन रोक देगा, बिकॉज तुमने ही ये कंडीशन सेट की थी. सो विथ योर परमिशन सिक्योर वॉच विल स्टॉप इट राइट अवे. सो दिस इज वन एस्पेक्ट. अनदर एस्पेक्ट इज द ऑटो डिफेंडर टूल. ऑटो डिफेंडर टूल कोई एबनॉर्मेलिटी लगती है, मतलब एग्जीक्यूशन में, इफ देयर आर एनी एबनॉर्मेलिटीज हैपनिंग दैट वर नॉट प्री कंडीशनड अर्लियर, ओके, सो इट विल अलर्ट यू राइट अवे. सो इस चीज के लिए यू थिंक इफ दिस इस चीज इस एस्पेक्ट के लिए स्लैक कम्स इन हैंडी, क्योंकि स्लैक का नोटिफिकेशन जल्दी से तुम्हें मिल जाएगा. सो ऑटो डिफेंडर तो जब आएगा प्ले में, वो तो खुद ही रोक देगा, ठीक है, खुद ही मिटिगेट करेगा. अभी जब प्ले में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल स्लैक का तुम्हें नोटिफिकेशन फट से मिल जाता है, जैसे सर्वर डाउन नोटिफिकेशन यू गेट, राइट. सर्वर डाउन नोटिफिकेशन के बाद यू से कि क्रिटिकल लेवल की तुम्हारा टिकट आया है, क्या ये सब टर्म्स बोलते हो ना अतिंद्र, क्रिटिकल लेवल टिकट, ब्लॉकर लेवल टिकट, यू आर सेइंग. Yes. सो ब्लॉकर आता है तो क्या 5-10 मिनट के अंदर तुम्हें सॉल्व करना पड़ता है ये चीज, ओके. सो तुम्हें फिर you need to be more proactive on that thing. If you are not using a auto defender feature, auto defender feature रहेगा तो खुद ही mitigate कर लेगा.
right? I think I'm clear on this. So the question पूछा गया था. Yeah, so Rahul has asked this question. Might Rahul has been Rahul को clear हुआ रहेगा कि आंसर क्या है उसका. Right. So over to you, Karan, if you have any questions, you can go forward. Or anybody else wants to ask some questions. Yeah, so Kunal here has asked that audits are often seen as one-time check before deployment, but smart contracts can evolve. How do you ensure audit security stays effective as projects scale and upgrade over time? हम्म. सो अगर प्रोजेक्ट्स अपग्रेड कर रहे हैं तो हम उसके हिसाब से अडेप्ट कैसे कर पाए. हाँ, यस. अडेप्टेबिलिटी पे ये क्वेश्चन है. सो राइट. जैसे कि बोला था कि ऑडिट ऑडिट होने से प्री डिप्लॉय, एक मिनट क्वेश्चन क्या है वो देखने दो. तुमने बोला कि वन टाइम चेक, तो वही नहीं करना है. वही वही कैन दैट कैन ओनली लीड टू यू टू द प्रिवेंशन फॉर द एक्सप्लॉइट्स हैपनिंग. सो अभी जैसे जैसे कोड तुम लोग लिखते जाओगे, हाउ यू फाइंड द vulnerabilities इन द कोड, यू नीड टू करेक्ट दोज, और यू नीड टू करेक्ट दोज इजीली. तो उसके वजह से यू कैन प्रिवेंट दोज थिंग्स, एंड बेसिकली यू नीड अपने आप अडेप्ट होते जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. और फिर टाइम टू टाइम जैसे जैसे तुम जैसे बोला कि स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इवॉल्व होते जाते हैं, तुम लोग एडिशंस करते जाते हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में. यू नीड टू ऑडिट दोज टाइम टू टाइमली, जैसे कि वो ये नहीं हो जाएगा कि एक एक्सप्लॉइट होने के लिए बचाना पड़ेगा तुमको सो बेसिकली. आई थिंक दिस इज वेयर एआई टूल्स कम इन हैंडी, राइट? या बार बार मैनुअल ऑडिटिंग के लिए तो Yeah, जाओगे नहीं. that will be more costly. So Solidity Shield comes here into the play, where you get it done easily. जैसे जैसे तुम्हारा कोड तुम लोग इवॉल्व करते जाएगा, तुम नए नए चीजें एडिशन करते जाओगे कोड में. जस्ट लॉग इन इनटू योर Solidity Shield account, and that's it. You will get the audit report easily. सो इन दिस मैं मुझे मेरा एस्पेक्ट बताने के लिए, आई थिंक यू आर क्लियर फ्रॉम Yeah. योर साइड अतिंद्र ऑन दिस Yes. क्वेश्चन. Yes. लेट मी अलाउ मी अ डेमो, शॉर्ट डेमो. सिर्फ मैं बताऊंगा, मैं एग्जीक्यूट नहीं करके बताऊंगा. आई विल जस्ट शो यू इन अ मिनट how can if the smart contracts are upgraded, how can secure watch come in on this. So so we had created a monitor last time around, a contract monitor, right? Yes. Yes. So we had created for Algorand testnet, right? So now we are creating it for Ethereum, for example, an EVM chain. Okay, Ethereum chain या कोई अलग EVM chain होगी, Arbitrum ले लो for हाँ. example. यहाँ पे तुम्हें अपना एबीआई कोड पूछता है कॉन्ट्रैक्ट का. नाउ इफ यू आर अपग्रेडिंग योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सो कोड में तो तुम डालोगे ही, तभी जाके तुम अपग्रेड कर रहे हो तुम्हारा कोड, राइट? तो जैसे सॉलिडिटी शील्ड अभी अतिनिधर ने बोला, Solidity Shield helps you scan your smart contracts and give you an audit quickly once they are getting upgraded. Okay, तुम्हें टाइम टू टाइम करना पड़ेगा. वैसे ही once you feel that ठीक है, ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरा डेवलप हो चुके हैं, मुझे इसके ऊपर रन टाइम सिक्योरिटी चाहिए, यू कैन जस्ट पुट इन योर एबीआई कोड या और स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएट अ मॉनिटर इन दिस. ठीक है, once you create a monitor, I'll show, we will have some monitors created on this. So we go on this, I think, edit monitor. So this is what an ABI code looks like. Okay, so एक बार हमने मॉनिटर डाल दिया तो वी कैन सेट एन इवेंट ऑन दिस. सो इवेंट्स में क्या रहेगा? सो इवेंट्स में जैसे कंडीशंस रह गए मैंने बताया, सो वही कंडीशन फिर फुलफिल हो रहे हैं कि नहीं, ट्रांजैक्शन वैसे ही एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं जैसे लिखा गया है. सो ये सब सिक्योर वॉच इंश्योर करेगा. सो एडेप्टेबिलिटी वाइज सिक्योर वॉच इज वेरी कस्टमाइजेबल, वेरी फ्लेक्सिबल, एंड जो भी तुमने लिखा है वो भी एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं वो भी चेक कर रहा है. सो एनी मोर क्वेश्चंस, So कुणाल? Rahul asked one more question, या. that are there ways runtime security can move from reactive to predictive, spotting suspicious behavior before it becomes an exploit? Yeah, right. So once I've explained you about, I've told you, actually mentioned about Oracle attacks.
सो हैकर भी क्या कर रहा है ओरेकल अटैक में, वो भी आके चेक कर रहा है कि मुझे राइट सिग्नल मिलता है कि नहीं है, यस और नो, 0 या 1, ठीक है। हम्म उसको अगर 1 मिला बाइनरी में कि उसको गो अहेड मिला, ठीक है तुम भाई जा सकते हो आगे, तो वो अंदर जाता है। सो लेट्स से इट इज लाइक तुमने कोई प्रोजेक्ट बनाया है, राइट, और तुम्हारा फॉर एग्जांपल कोई ज्वेलरी शॉप है, राइट, ज्वेलरी शॉप का गोडाउन होगा, लेकिन तुम्हें कहीं पे तो भी एग्जिबिट भी करना है, तुम्हारे शोरूम में एग्जिबिट करना है फॉर एग्जांपल। अब अगर तुम किसी हाई एंड जगह शोरूम लगाओगे, राइट, तो उसमें तो ऐसे नहीं है कि सिर्फ अच्छे इंटेंशन वाले लोग ही आएंगे, राइट, कोई कोई अभी सबको अट्रैक्ट कर रहा है, तो हैकर्स भी अट्रैक्ट हो गए, हैकर्स एज इन जो एक्सप्लॉइटर्स रह गए, चोरी करने वाले रह गए, वो भी आएंगे तुम्हारे ज्वेलरी के लिए, ज्वेलरी से वो भी अट्रैक्ट हो गए। सो व्हाट इज बीइंग डन बाय रन टाइम सिक्योरिटी, अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव है, सो इट इज प्रोवाइडिंग यू अ 24/7 अलर्ट ऑन दिस थिंग, राइट। सो अगर अट्रैक्शन हो रहा है तो हैकर्स भी आएंगे, सभी आएगा, और हैकर हैकर तो चेक कर रहा है फिर 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, सो इसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हम तुम्हें अलर्ट भेज देंगे या हम उसको मिटिगेट कर लेंगे कि भाई ओरेकल अटैक हो रहा है, सो दिस इज समथिंग सस्पिशियस हैपनिंग, बिहेवियर एनोमली है इसमें, ठीक है। एग्जीक्यूशन अगर नहीं हो रहा है स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज अ बिहेवियर एनोमली, राइट। सो उस चीज पे तुम्हें अलर्ट कर देगा, और ऑटो डिफेंडर फीचर डिफेंड भी कर लेगा इसको, क्योंकि अगर ये कंप्लीटली डिफरेंट है जो कि होना ही नहीं चाहिए, तो एग्जीक्यूट ही नहीं करने देगा वो, ठीक है। आई थिंक माई पॉइंट इज क्लियर। Rahul, I think so. The answer is been said to you. If anybody has any questions, or we can move forward with Karan, you have any Karan, we can take this conversation ahead. ओके, सो अतिंद्र, जितने भी अभी कॉन्वर्सेशन हुआ, जितना भी अभी व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, सो डू यू थिंक हमें हमें ऐसे दोनों चीज यूज करनी चाहिए, सॉलिडिटी शील्ड फॉर एग्जांपल, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स एज वेल एज रन टाइम सिक्योरिटी, डज डज दिस these two things go hand in hand, or you we can use any of these things? So, according to the discussion we are having now, or we had previously, so both ये कैसे both they both run hand to hand, मतलब एक साथ ही चलना पड़ेगा इन लोगों को, क्योंकि अगर एक साथ नहीं चलेंगे तो यहाँ से प्रॉब्लम आएगा, अगर नहीं हुआ तो वहां से प्रॉब्लम आएगी. सो वी नीड टू गो हैंड इन हैंड. सो आई थिंक सो दिस कि हैंड इन हैंड ही बेटर है ऑप्शन दोनों के लिए, मतलब दोनों एक साथ ही चलेंगे तो अच्छा रहेगा फॉर या द as well as the monitor या runtime. सेम थिंग फॉर मी, अगर मतलब तुम्हारा फाउंडेशन ही क्लियर नहीं है, मतलब ओके हम्म, नहीं है, हाँ. सो तुम सिक्योरिटी दे के क्या मतलब है कि नहीं, मतलब इफ यू आर एम्प्लॉइंग अ सिक्योर गार्ड टू गार्ड योर होम, बट द फाउंडेशंस ऑफ द होम आर नॉट प्रॉपर, सो वो तो गिरने ही वाला है, राइट। Yes, yes. सो सो टेल मी अतिंद्र, अभी जो ऑडिट्स होते हैं और पहले जो ऑडिट्स होते थे, उनमें कितना फर्क आया है, तो कैन यू एक्सप्लेन अस ऑन दिस? पहले अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, जब से मैंने जब जब से मैं खुद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखता था, तब से देयर वर जस्ट फ्यू, मतलब बहुत मैनुअल ऑडिट्स बहुत ज्यादा होते थे तभी. जब से मैंने लिखना, अभी अभी रिसेंटली द एआई हैज बीन टेकन ओवर. बहुत ज्यादा एआई ने बहुत टेक ओवर कर लिया है, तो उसकी वजह से टूल्स हैव बीन जनरेटेड सच एज सॉलिडिटी शील्ड हैज बीन जनरेटेड. तो ये अभी, पहले बहुत हार्ड था बेसिकली टू गेट योर स्टफ ऑडिटेड, बट नाउ इट हैज बीन बिकम इजी टू गेट ऑडिटेड योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. ओके, सो AIML टूल्स, AIMल टेक्नोलॉजी जब से एआईएमएल आगे बढ़ी है, हैज अ वास्ट, मतलब बहुत टेक ओवर कर लिया है सब फील्ड्स में बेसिकली. बट हियर ऑल्सो ब्लॉकचेन में भी एआईएमएल ने एक जगह बना ली है खुद की, आई कैन से. राइट, और हमारे भी काफी AIML टूल्स है, राइट। यस यस, एएमएल टूल से जैसे सॉलिडिटी शील्ड मैंने बोला ही, पूरा एआई जनरेटेड अपने आप ही सब वो ये करेगा. आई थिंक सो सिक्योर वॉच भी एआईएमएल, सिक्योर वॉच का जैसे तुमने बोला ऑटो डिफेंड टूल, वो भी शायद एआईएमएल टूल ही है. एक्चुअली आई थिंक द सिक्योर वॉच इज फीचर. कंप्लीटली एन AIML टूल, ठीक है, क्योंकि जैसे ही तुम स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डाल रहे हो और तुम्हें रियल टाइम अलर्ट्स दे रहा है, दिस इज कंप्लीटली एन AIML टूल, ओके।
सो AML तो हम सब प्रोडक्ट्स में यूज कर रहे हैं, जैसे तुम्हारे सॉलिडिटी शील्ड में और मेरे सिक्योर वॉच में, दोनों में AML टूल यूज हो रहा है. एंड आई थिंक देर इज समथिंग लाइक ऑडिट एक्सप्रेस. अतिंद्र, कैन So यू शो अस हाउ इट लुक्स एक्चुअली? yeah, क्योंकि I can show you एंड real हाउ quick. इज इट डिफरेंट फ्रॉम सॉलिडिटी शील्ड टूल ऑफ योर्स? Let me show you real quick. और Let तुम्हारे पीछे सॉलिडिटी शील्ड लिखा है क्या, अतिंद्र? यस, सॉलिडिटी शील्ड दिख ओके. नहीं रहा होगा, लेकिन मेरे सीधा पीठ पे है वो सॉलिडिटी ओके. शील्ड लिखा हुआ है. अच्छा, ठीक है. यस. So let me share my screen really quick. Is my screen visible? यस, यस, इट इज. सो ऑडिट एक्सप्रेस वही है बेसिकली. इधर तुम मल्टीपल टाइम्स तुम्हारा ये कर सकते हो स्कैन अपना स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट. राइट. सो एज एज उसमें जो सॉलिडिटी शील्ड में जैसे बोला मैंने कि वही सेम होता है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस है, गिटहब है और अपलोड करने का ऑप्शन है. ओके. सो वही, जैसे अभी यहाँ पे तुम्हारा कंपनी नेम, फिर यहाँ पे ऑडिट रिपोर्ट, यहाँ पे मल्टीपल ऑडिट्स हो चुके हैं बेसिकली, देख सकते हो तुम. एक बार करके बताओ ना, सेम कॉन्ट्रैक्ट जो तुमने यूज किया था वो ऑडिट एक्सप्रेस पे यूज करके बताओ. ओके, लेट मी रियल क्विक. ये देखो, मेरा नाम, मैं कंपनी का नाम सिक्योर्ड ऐप ही रख देता हूँ. यहाँ पे मेरा ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का नाम है वोटिंग. voting.sol आई थिंक. ठीक है. सो यहाँ पे अगर मैं ऑडिट रिपोर्ट क्लिक किया एंड ओटीपी आएगा, एक सेकेंड. या. सो दिस इज एन रियली क्विक प्रोसेस. देखो ओटीपी डाल दिया, वैलिडेट. ओके. मेरा नेट का इश्यू रहेगा थोड़ा, इसलिए ओके. स्लो हुआ है वो. So can you click on any earlier audit that has happened? I need to like understand how this thing works actually. जस्ट अ सेकेंड, ये अभी एक सेकंड में रिफ्रेश कर देता हूँ पेज को, हम्म. मतलब क्लियर हो जाएगा अभी. ठीक. व्यू स्कैन दिखाओ किसी ये का. अभी मेरा, नहीं तो ये देखो सबसे कम वाला देखते हैं. ठीक है. तो टोटल 80 वल्नरेबिलिटीज फाउंड हुआ है इसमें. राइट. ये देखो यहाँ पे तुम्हारे कवरेज स्कोर भी आता है. हम्म. इसमें टोटल हाई लेवल के, हाई वल्नरेबिलिटीज के दो लाइन से 34 लो वल्नरेबिलिटीज कोड है, प्रॉब्लम आ रहा है बेसिकली. वल्नरेबिलिटीज फाइंड हुए लो लेवल के, और मीडियम लेवल के 8 है, और हाई के 2 लेवल, हाई लेवल के 2 मिले. ओके. सो व्हाट दिस इज इज रिटन ऊपर उसके? स्कैन ड्यूरेशन भी दिखा रहा है उसमें, राइट? यस, ऊपर. ओके. 13 सेकेंड्स में स्कैन हो रहा है. सी, ओके. मैंने बोला विद इन कपल ऑफ सेकेंड्स, तो यू कैन सी क्लियरली कि 13 सेकेंड्स में विथ मिली सेकेंड्स भी बता रहा है कि ओके. 13.26 सेकेंड्स में तुमको बेसिकली पता ही चल रहा है कि तुम्हारा ऑडिट का सिक्योरिटी स्कोर क्या है, प्लस तुम्हारा ऑडिट की क्या हालत है. ओके. ये बेसिकली तुम्हारे ऑडिट की जो हालत है वही बता रहा है. हेल्थ वाइज व्हाट इज योर ऑडिट स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट इज. So it is basically giving you a quick audit score. या क्विक, And it, कॉम्प्रिहेंसिव, छोटा सा ही, छोटा एक तुमको बता देगा कि उसने 13 सेकेंड्स में 606 लाइन्स को स्कैन भी कर दिए. ओके, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी काफी थी, उसने 13 सेकंड में कर लिया ऑडिट. कर दिया. ओके. दिस इज सो रियल. and if I need to get a code by code analysis, so I need to go for solidity shield, right? या क्योंकि ऑडिट रिपोर्ट उसमें. सीधा सीधा एक तुमको एक रिपोर्ट ही बना के आ जाएगा तुम्हारे इस पे कि ओके. ये लाइन में तुमको एरर है, प्लीज करेक्ट इट और पैच इट इजीली, तो वो हो जाएगा. So if this tool is you think if it is integrated in any blockchain, so the projects there can benefit it काफी एक्सटेंट में, है ना? हाँ हाँ, तो फुल्ली काफी मतलब. अच्छे से बेनिफिट कर अभी सकते हैं. जो मेजरली देखो हैकेथॉन्स होते हैं, नहीं तो जैसे बहुत सारे कॉलेजेस में हैकेथॉन्स होते हैं, और उसमें भी लोग ब्लॉकचेन वाले रहते हैं और वो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट सीखते हैं. तो राइट. अगर ये टूल वहाँ इम्प्लीमेंट हुआ है, बेसिकली यानी हैकेथॉन मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म बोल लो, तो हम्म. यहाँ पे ये टूल अगर ये हो गया है, अपने इंटीग्रेट कर लिया है उन लोगों ने, हम्म. तो students can directly go there, type their email ID, upload their contract,
एंड दैट्स इट। उनको पता चल जाएगा कि क्या है क्या नहीं है उनके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या, हेल्थ वाइज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का कैसे क्या है, कि ओके, वेदर इट इज अच्छा है कि थोड़ा वर्क करना पड़ेगा उस पे और। गॉट इट, गॉट। सो इतने में ही आई थिंक मैंने भी काफ़ी हैकेथॉन्स अटेंड किए हैं और कुछ जज भी किए हैं। सो आई थिंक इवन इफ दे गेट दिस इंडिकेशन, दे राइट लाइक सम वल्नरेबिलिटी है हाई लेवल की या मीडियम लेवल की या कोई भी वल्नरेबिलिटी है, सो इतना भी अगर उनको पता हो गया तो वो फट से कोड में रीचेक करके आराम से, यस। क्योंकि एज एज केस भी कोई रहा तो वो भी फिर निकाल लेते हैं, करेक्ट कर लेते हैं। राइट, सो वल्नरेबिलिटी ऐसे नहीं है कि तुम एक लाइन लाइन ऑफ कोड में अगर गलती से भी एक कॉमा यहाँ का वहां भी चला गया तो दैट इज कंसिडर एज अ वल्नरेबिलिटी इन द कोड। राइट, सो मतलब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो एक कॉमा यहाँ से वहां चला गया तो वो भी वल्नरेबिलिटी हो सकता है, और दैट कैन बी ऑल्सो मेजर। वो चीज को भी लेके कुछ कुछ लोग एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। तो गॉट इट। दैट इज वेयर यू नीड टू वर्क ऑन इट, मतलब ये टूल के साथ तो तुमको पता ही चल जाएगा। तो दैट वे यू कैन वर्क ऑन योर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट। Okay, got it. So you can stop sharing your screen, या Atindra. I need to ask you a question. So, how do you think smart contract audits ecosystem में कैसे trust build कर पाएगा? मतलब सो trust build करने में helpful कैसे होता है, basically? तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो समझो कि तुम मेरे क्लाइंट हो और तुम्हारा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास लेके आए हो। सो Right. इफ यू ब्रिंग अ स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट टूवर्ड मेरे पास, तो फिर बोला कि चलो मेरे को इसको ऑडिट करके दो। Hmm. तो मैंने क्या किया, पहले मैनुअल ऑडिट करने से बेटर तुमको बोला कि चलो एक बार सॉलिड शील्ड यूज करके देखते हैं कि थोड़ा एक रफ आइडिया आने दो मेरे को कि कितने कोड में वल्नरेबिलिटी है क्या है। तो Right. मैंने निकाल के देखा और फिर उसमें बोला, इसमें देखा कि क्रिटिकल लेवल पे कुछ ज्यादा ही तुम्हारे एरर्स आ रहे हैं, वल्नरेबिलिटीज दिख रहे हैं मेरे को। Right. सो फिर मैं तुमको कन्वे करूंगा कि देखो करण ऐसे ऐसे हुआ है, तुम्हारे कोड में बहुत क्रिटिकल वल्नरेबिलिटीज आई है। सो वी Hmm. नीड टू फिक्स दैट एज सुन Right. एज पॉसिबल। Right. तो दैट्स वाई दैट द मतलब जैसे तुम एक डेवलपर हो और मैं ऑडिटर हूँ। सो Right. दैट वे वी नीड टू कीप कम्युनिकेटिंग कि अगर मैं कुछ चीजें छुपाऊंगा तो वो Hmm. स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कैसे, मतलब तुम पब्लिश करोगे और फिर बाद में एक्सप्लॉइट हो गया हो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, Right. तो दैट्स मतलब ट्रस्ट तोड़ दिया ना मैंने तुम्हारा। Right. तो दैट वे कि अगर मैं तुमको बताऊंगा कि हाँ करण ये यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है तो वी नीड टू फिक्स दैट, तो बैठ के वी नीड फिक्सिंग दो स्टफ, फिक्सिंग दोज vulnerabilities, so that way we can build the trust with the auditor as well as the developer. Developer community. And nowadays, like projects also display it कि we are audited by X Hmm. company, we are audited by Y company. How do you think it helps in building the trust with the Web3 community and other investors and projects? सो एज जैसे तुम बोल रहे थे कि ऑडिटेड बाय, तो ऑडिट होने के बाद पीपल इट अट्रैक्ट्स यूजर्स Right, बेसिकली कि हाँ अगर ये लोगों को ऑडिट हो गया तो ट्रस्ट बिल्ड होता है उनपे, right, कि हाँ कि अभी इन पे ट्रस्ट कर सकते हैं हम। चाहिए तो एक समझो किसी डेक्स का एग्जांपल ले लो, नहीं तो किसी सेक्स का एग्जांपल ले लो, तो उन्होंने बोला कि अभी आर रिसेंटली ऑडिटेड, तो अभी लोग उन पे जाके ट्रांजेक्शन्स करना स्टार्ट कर सकते कि हाँ बाबा इन लोगों का ऑडिट हो चुका है, हमारे फंड्स वो सेफ रहेंगे इनके वॉलेट पे बेसिकली। got it, got सो it. दैट इज द वे कि लोगों के इसमें वो ये हो जाएगा, ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा अपने आप की, अगर तुमने बता दिया कि वी आर ऑडिट। मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करके अगर समझना होगा कि अगर किसी गेम फाई प्रोजेक्ट ने, कोई गेमिंग प्रोजेक्ट ने वेब3 के अगर ऑडिट कर लिया है, सो एंड इट सेज दैट वी हैव बीन ऑडिटेड बाय एक्स कंपनी एंड वी हैव बीन ऑडिटेड बाय वाई कंपनी, या तीन चार कंपनी से हमने ऑडिट कर लिया है, इट विल अट्रैक्ट मोर यूजर्स लाइक मी फॉर एग्जांपल जो गेमिंग में इंटरेस्टेड है। सो मैं अपना वैल्यू उसमें डिजिटल एसेट्स उसमें डाल पाऊंगा क्योंकि मुझे पता चलेगा कि इधर ये इसका ऑडिट हो चुका है, तो इस करेक्ट, हिसाब से काफी सेफ है, राइट? करेक्ट, यस। सो इट विल हेल्प इन अट्रैक्टिंग यूजर्स लाइक मी और इन्वेस्टमेंट्स आने में भी हेल्प करेगा प्रोजेक्ट को, है कि नहीं? एंड सेम थिंग goes for runtime security as well. If you say that there is a runtime security deployed by you on your project, so it helps mainly the investors
ओके, बिकॉज पैसा तो वो काफी डाल रहे हैं प्रोजेक्ट में, राइट? Yeah. क्योंकि उनको भी like, वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि द एसेट्स ऑफ दिस प्रोजेक्ट विल ग्रो बाय 10x और 20x, तो उनको भी आगे जाके उतना 10x 20x वैल्यू मिलेगा। ओके, बट उनका इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट में अगर वही एक्सप्लोइट हो गए उनके डिजिटल एसेट्स, सो उनका भी काफी नुकसान है, प्रोजेक्ट का भी नुकसान है, इन्वेस्टर्स का भी नुकसान है, राइट? सो रन टाइम सिक्योरिटी हेल्प्स gain the investors trust as well. Okay, so they can attract more investors onto our project. I think some questions are coming. Can you take? So first question from Akansha Bedi is that are these tools open source to use? Okay, these tools are open source, and Atindra, can you show them a GitHub repo of us? Yeah, just a second. So हमारी वेबसाइट पे ही GitHub repo we have put in. Provided, yeah. So Yeah, I am just pulling up the. Atindra will walk you through that. So this is our GitHub repo, as you can see. यहाँ पे सिक्योर ऐप का, सिक्योर वॉच का भी है, सिक्योर ट्रेस का भी है। अतिंद्र, गिटहब का क्या यूज है मुझे बताओ प्लीज, क्योंकि मैं तो डेवलपर नहीं हूँ तुम्हारे जैसे। तो गिटहब का यूज ये है कि अभी गिटहब पे तुम लोग को तुम्हारे बेसिकली अभी जो बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स रहते हैं उनका साइज कुछ ज्यादा रहता है। सो यूजिंग गिटहब तुम उसमें ही सब स्टोर करके उसमें ही तुम राइट कर सकते हो गिटहब पे। और यू इफ यू आर हैविंग अ टीम ऑफ कपल ऑफ मेंबर्स, तो उसमें तुम लोग काम करके उसमें ही पुल रिक्वेस्ट्स डाल के उसमें ही थोड़ा उसमें ही काम कर करके तुम उस पे ही वर्क कर सकते हो गिटहब पे। So the use of GitHub is that सो इट basically इज एन for ओपन coders. सोर्स वेबसाइट एक्चुअली, राइट? Yeah. क्योंकि उधर ओपन सोर्स दिख रहा है मुझे, एंड आकांक्षा का क्वेश्चन आई थिंक ओपन सोर्स के रिगार्डिंग है। टूल से ओपन सोर्स टूल से क्या अपने दैट वाज राइट, अ राइट। सो आई थिंक आकांक्षा, एनी फॉलो अप क्वेश्चन ऑन दिस? एनी अदर क्वेश्चन Atindra? एक second let me. So Rahul has asked one more question. Karan, a question: how far we are seeing how far are we seeing are from seeing AI powered runtime security systems that can self learn from blockchain activity and proactively block zero day exploits? ओके, एंड प्रोएक्टिवली आखिर का पार्ट क्या था? Proactively block zero day exploits. Okay, okay. Zero day exploit. Yeah, got it. So I think the code, मतलब तुम बोल रहे हो कि कॉन्ट्रैक्ट से ही लर्न करेगा, लर्न करना चाहिए, और कोई zero day vulnerabilities, I know that they occur in the first day itself, like 0 day before we are going live, Before even, at हाँ. the time we are going live. Yes. So सो एनी मतलब हमको प्रोएक्टिवली खुद ही लर्न करने को बोल रहा है कि कोई भी कोड अगर हमारे मेमोरी में नहीं है पर हम लर्न कर चुके हैं, हमारा टूल लर्न कर चुका है पिछले हमारे एक्सपीरियंसेस से, ताकि आगे जाके उनको टैकल कर सके, भले तुमने कोई अपलोड नहीं किया है नया कोड इसमें। सो आई थिंक दिस इज द way forward for AIML tools right now, and I think this is a good suggestion that we can give to our company as well, कि हमने तो एक AIML टूल जो पावरफुल है और ऑटो डिफेंड कर रहा है, ये सब चीज़ें तो हमने ऑलरेडी बनाए हैं। अभी वो इस चीज़ को पहले ही प्रीएम्प्ट कैसे कर पाएगा, कि लर्न कैसे कर पाएगा कि ये सब चीज़ हुआ है, आगे जाके क्या हो पाएगा, इसलिए तुमको आगे की भी अलर्ट्स दे दे। पर इस चीज़ से एक डिफिकल्टी ये आएगी कि वो तो काफ़ी चीज़ें तुम्हें बता देगा, ये हो सकता है, वो हो सकता है, तुम्हें अलर्ट्स काफ़ी आते जाएंगे, उसमें यू विल मिस द अलर्ट दैट दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू। अगर हैकर उस पॉइंट ऑफ टाइम में एट प्रेजेंट तुम्हें कुछ एक्सप्लॉइट करने की कोशिश कर रहा है तुम्हारे डिजिटल एसेट्स को, सो तुम फ्यूचर को देखने के चक्कर में प्रेजेंट मिस ना कर पाओ, तो तुम्हें ये भी इंश्योर करना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफ़ी मतलब थिंकिंग लगेगी इस चीज़ के लिए, ताकि दोनों चीज़ें हम साथ में ले पाए। So I think the doubt is clear, I think. क्लियर, यस राहुल। सो जौहर ने लिखा है कि दे आर इनटू द डेवलपमेंट स्टेज फॉर, आई थिंक
I think 10 to 15 years, maybe 15 to 20 years. So right? Jawahar had written something. Okay, you can take that question, Atindra, if you have understood that. No, they are into, he's saying they are into the development phase. Okay, okay, okay. So Jawahar, if So you have you any question, that would you be good. can, if you are Yeah. in development phase, Jawahar, you can use the AIML tool that Atindra has said, Solidity Shield. वो तुम्हें That can yeah, that can that can really help you. help you on the go to check if there are any Yeah, vulnerabilities. so So you can they, get a plus or premium subscription of that, and your whole team can use that, yes, right, sir. Atindra? Yeah. So Yeah, any questions we can take? We have 4 more minutes. yeah. So any final questions, guys, from your end? Okay. So, Atindra, I guess you can summarize this conversation of ours, and you So can also tell us about the upcoming session of Face Off that's coming. second, firstly, thank you everyone for joining this session. So quick update, a quick summarization of this conversation. The smart contract is and runtime security are both essential to for the smart contracts, basically to basically हम लोगों ने वही डिस्कस किया है यहाँ पे कि how smart contracts are essential as well as how runtime security is also essential after the smart contract is been audited or after the pre-deployment phase, after the post-deployment phase basically, कि रन टाइम को कैसे रन टाइम कैसे अप्लाई होता है उस चीज में, Right, फिर बाद में स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑडिट्स एक्सप्लॉइट होने से कैसे बचा सकते हैं, हाउ right, कैन वी यूज यूज टूल्स सच एज सॉलिडिटी शील्ड, सिक्योर वॉच. right. Basically this is the summary of it. So And what I got from this is right from pre-deployment of smart contracts. w- Pre-deployment as in तुमने smart contract deploy करने blockchain पे से किया पहले, नहीं है. करने So से in पहले that phase you can use Solidity Shield tool of ours, and you can go for smart contract audits. In that phase it is really helpful. Even after that actually, so that तुम्हें अगर कोई improvement करना होगा, even though you say that immutable है smart contract, but you can like redeploy things totally. So even after pre post deployment, you can go for audits if you need confidence in what you have already developed, or you should go for, तुम्हें चेक करना होगा कि हमें और कोई डेवलपमेंट करना चाहिए कि नहीं वापस. So you need to check that development phase में. And after pre-deployment of smart contract, you can go for runtime security yes, that will provide you 24/7 vigilance. So right from pre-deployment of smart contracts to post-deployment and beyond, runtime security tool as well as Solidity Shield tool and auditing tools help you. So even after one has got hacked, and for example अगर किसी ने हमारा tool use नहीं किया है पहले, and if they have got hacked, we have tools like Secure Trace, for example, that can come in. So I think that you should announce the next phase of session that will go on. yeah. So next phase of session will be on 20, एक second, just a 19th May. 19th May. नहीं नहीं, Uh, the session is on 19th May. Second episode of the Face Off series. It will be a three episode series, Face Off series. ये season में हमारे, and going from the response that we get from you guys, we will then roll out more more seasons sessions. in the coming days. Yes. So I think Atindra, we should wind up, right? Yeah. It's like nine, almost nine, right? Yes. Anything, Atindra, that you need explanation from No. my end? Uh, so I can say this officially that this friendly banter is over. I am satisfied with the things that you have been saying on LinkedIn, and I think so you are satisfied with my things that I have been saying on LinkedIn. So Yeah, we yeah, can officially declare this friendly banter to be over, I think so. yeah, yeah, exactly right. So let me give you a reaction. Let me give you a thumbs up as well. Yeah. So yeah, guys. So let's both us be chill right now on Yeah. social media.
and we can look up to the next season, next episode that is coming up, and hopefully we will have more seasons rolling out of Face Off in the coming days. Yes, So thank you guys. Thank you so much, guys. Thank you so much.